دیکھو انوارے رمضان، انوارے رمضان ہے ہر سو، انوارے رمضان، انوارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان منصور ساحر انوار سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جن دوستوں کو مدعو کیا ہے وہ شہر کراچی میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں کراچی کے ایک سینئر شاعر، بہت خوبصورت کلام لکھتے ہیں، محترم ذوالفقار حیدر پرواز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ اب ہم اس سمت چل پڑے ہیں جس میں ہم نے خلق خدا کی خدمت کو فوکس کرنا ہے، تو ایک اور دوست جو خلق خدا فاؤنڈیشن کے کراچی کے صدر ہیں، انہوں نے بھی آج ہمیں جوائن کیا ہے، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترم سلمان بھٹی۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے انوار رمضان کے جو آپ لیرکس سن رہے ہیں، اس کے بھی خالق مجھے بتایا ابھی میرے دوستوں نے کہ میرا بڑا بھائی بہت ہی توانا آواز ایسا شعر کہتا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے درمیان موجود ہیں محترم شبیر نازش۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ ان کے ساتھ میرے ٹیم ممبر کامران چاولہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مستقل ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ مستقل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہم جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی دعویٰ نہیں ہے منصور ساحر اور منصور ساحر کی ٹیم کا، لیکن مکمل وعدہ ہے کہ اپنی ذات سے جو بھلا ہو سکے گا وہ ضرور کریں گے ہم۔ گفتگو کا آغاز ہم کر لیتے ہیں سلمان بھٹی صاحب آپ سے۔ خلق خدا فاؤنڈیشن جو ہے وہ خلق خدا فاؤنڈیشن جو ہے وہ کیسے اور کہاں کام کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اسٹارٹ تو ہم نے کراچی سے لیا تھا، اور اس کے سندھ کے مختلف علاقوں میں ہم نے الحمدللہ کام کیا ہے، سرکاری اداروں میں کام کیا ہے، جیلوں میں ہم نے کیمپ وغیرہ لگائے ہیں۔ بیسک ہمارا جو آفیشیل جو ہم کام ہے وہ میڈیکل پہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ باقی لوگوں کے گھر میں راشن وغیرہ چھوٹی موٹی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے ہم کر رہے ہیں، لیکن بس ہمارے یہ ہمارے اندر خوبی ہے کہ ہم اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں کر رہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جتنا بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کو سائلنٹ طریقے سے کریں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، بس جو جس کا حق ہے اس کو سائلنٹ طریقے سے، اس کی عزت و مال نہ ہو، اس کے گھر تک اس کا حق پہنچے۔ باقی مختلف کراچی کے مختلف جتنے بھی گوٹ آباد ہیں، چھوٹی آبادی ہیں، اس میں ہم میڈیکل کیمپ شروع سے ہی مسلسل 3 سال سے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جیلوں میں سینٹرل جیل میں کیمپ لگائے ہیں، اس کے بعد ہم نے لانڈی جیل میں لگائے ہیں۔ کوئی ایسا گوٹ نہیں ہے جس میں ہم نے میڈیکل ماشاءاللہ، جس میں فری میڈیکل ہوتا ہے، فری میڈیکل ٹیسٹ ہیں، اس کے بعد میڈیسن فری ہے، تقریباً ساری سہولیات انشاءاللہ میڈیکل کے حوالے سے ہم فری دیتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ بڑے بھائی ذوالفقار بھائی، آپ کا تعلق ایک مخصوص کمیونٹی سے ہے، بوری کمیونٹی ہماری ماشاءاللہ بہت ہی خاص طور پہ تجارت میں ہے، تو کمیونٹی کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ کہاں مدد کا جب حوالہ آ جاتا ہے تو کیسے کی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے کبھی کوئی تشہیری مہم آپ کی طرف سے یا آپ کی کمیونٹی کی طرف سے ایسی نہیں دیکھی ہے۔ نہیں، اسکاؤٹس ہے، برہانی گارڈز کے حساب سے بلڈ بینک ہے، تو وہ اپنی جب بھی وقت آتا ہے کوئی پریشانی کوئی تکلیف امت مسلمہ کے لیے تو یہ تنظیمیں کام کرتی ہے۔ نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو آپ نے آفات کا ذکر کیا نا، جب کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے اس میں تو ضرور نظر آتے ہیں، لیکن وہ جو کسی کو ایک تھیلا دے کے تصویر کھنچوا کے 6 آدمی جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کی کوئی نیگیٹو وہ نہیں دیکھی۔ ہاں نہیں، ایسی چیزیں خاموشی کے ساتھ ہی، اور جو خاموشی کے ساتھ کمیونٹی میں لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آج، اور میرے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی بوری کمیونٹی کا کوئی رکن کہیں مالی طور پر کہیں 19-20 ہوتا ہے، کوئی شکار ہوتا ہے، تو کمیونٹی کس طرح خاموشی سے اس کی مدد کرتی ہے اور کس طرح اس کے معاملات کو دیکھے جاتے ہیں، تھوڑا سا۔ جی میں یہ بتاؤں گا کہ
कोई परेशानी होती है तो उसके लिए कारोबार में लॉस हो जाता है या कारोबार में नुकसान हो जाता है तो उसको जो बड़े बड़े इदारे हैं, हमारे जो बिजनेसमैन हैं, वो खामोशी के साथ उनकी मदद कर देते हैं। बेवा है तो उनके लिए मशीन है, उनके फर्नीचर है, वो सारी चीज़ें पर मंथ बांध ली जाती है। उसके अलावा कर्ज़ हसना की स्कीम हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर है, जिसके अंदर बिल्कुल सूद नहीं है, और कोई कारोबार नया करना चाहता है तो ज़मानत पर उनको कर्ज़ हसना मिल जाता है। तो इस तरह से जो है हमारे में जो है ये एक सेटअप है, और सिर्फ हमारे में नहीं बल्कि वो तमाम मुसलमानों के लिए काम करती है। उसके बिल्कुल, मतलब वो तो, लेकिन वही वाली बात है ना, पहले तो अपना घर देखेंगे, अपना भाई देखेंगे, अपना अजीज देखेंगे, और उसके बाद फिर जब कोई भी, हमने देखा है हंगामी बुनियादों पर या आफात आती हैं तो ये आपकी कम्युनिटी सबसे आगे होती है माशाल्लाह। शबीर भाई, जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है उसमें महंगाई ने गरीब आदमी की तो ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बड़ी मुश्किल से मामलात होते हैं, लेकिन अल्लाह का चूंकि ख़ास करम होता है इस माह रमज़ान में, तो बहुत सारा हवाला जो है वो बनता है, बहुत सारी NGOs काम कर रही होती हैं, बहुत सारे मुखय्यर हजरात भी दिल खोल कर कराची में चैरिटी कर रहे होते हैं। तो ये बरकतें, ये रहमतें जो अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान में दी हैं, इसका फ़ायदा उठा के हम सारे साल में कुछ चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। आप समझते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है? जी बिल्कुल, रास्ता निकल सकता है। जिस तरह ये जज्बा ईमानी एक महीने के लिए जागता है, और इंसानियत के नाते अगर हर महीने पूरा साल ही ये इसी तरह, इसी ज़ोर शोर के साथ, इसी ज़ौक़ व शौक़ के साथ जारी रहे, तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो अभी तक सेटल नहीं हुए, जो आसानी के साथ हो सकते हैं। और मुमकिन है कि अगर ये 1 साल 2 साल कंटिन्यूटी के साथ किया जाए तो हमें कोई ऐसा बंदा ही नज़र ना आए कि जिसकी हमें हेल्प करने वाला। जी हाँ, मतलब इतना पोटेंशियल आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे सूबे, हमारे शहर में है। जी बिल्कुल, कि बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। पूरे पाकिस्तान में हर शहर में ऐसा पोटेंशियल है। आप देखें कोई कुदरती आफात आती हैं जब, तो हर शहर से किस तरह लोग उमड़ के आते हैं और वो अपना हिस्सा, जो भी जिसकी इस्तेताअत है वो हिस्सा डालते हैं माशाल्लाह। तो ये मतलब मखसूस औकात में नहीं होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूटी के साथ, जैसे ये भाइयों ने तंजीमें बनाई हुई हैं, इस तरह की कोई ऐसी तंजीमें जो कंटिन्यूटी के साथ काम कर सकें तसलसल के साथ, तो ये बहुत सारे मामलात हल हो सकते हैं। बहुत सारे मंसूर भाई ऐसे लोग होते हैं जो कह नहीं सकते। जैसे मोहसिन नकवी का एक शेर है कि सिर्फ हाथों को ना देखो कभी आंखें भी पढ़ो, सिर्फ हाथों को ना देखो कभी आंखें भी पढ़ो, कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। हाय 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 हाय। तो ऐसे लोगों को भी जानना चाहिए, देखना चाहिए, जो कह नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को बढ़ के आगे खुद उनकी हेल्प करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई हम आपके किस काम आ सकते हैं। शबीर भाई, मोहसिन भाई का आपने ये शेर भी सुना दिया खूबसूरत। जो आप कह रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उस काम पर मामूर कर दिया है। पिछली 2-3 ट्रांसमिशन से हम ये गुफ्तगू कर रहे थे मामलात पे, और कल मेरे साथ एक बाकायदा 3-4 लोगों की टीम जो है वो जुड़ गई है, और जिसमें से चावला साहब भी एक हैं। तो और हमने यही तय किया कि वो हम जिसके हाथ फैले हुए हैं ना, उस की तरफ तो देखेंगे और अंदाज़ा करेंगे कि ये पेशावर है या इस वक्त की ज़रूरत के तहत है, लेकिन हम आंखें पढ़ेंगे। हम उन सफ़ेद पोश दोस्तों की मदद के लिए निकले हैं, मैं और मेरी टीम, कि जो कह नहीं सकते। चावला साहब, बहुत दुरुस्त फरमाया आपने। ये रमज़ान के हवाले से हम ये कर रहे हैं, लेकिन हमारा दीन भी यही कहता है और माशरती अखलाकियात का भी तकाज़ा होता है, हमें इसको सारा साल जारी रखना चाहिए। और जो भी हमारे महदूद या लिमिटेड रिसोर्सेज वसाइल हैं उनको लेके, क्योंकि फिर आगे चलते रहते हैं, मामला फिर आगे बढ़ता रहता है और अल्लाह ताला बरकत डाले। अल्लाह ताला खैर के साथ मामलात फरमाए। और इस वक्त नाज़रीन कराम, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जुल्फ़िकार हैदर परवाज़ हमारे भाई बहुत अच्छे शायर हैं, और शब्बीर नाज़िश बहुत अच्छे शायर हैं। तो इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के इनसे इनका कलाम भी सुनेंगे। जुल्फ़िकार भाई, क्या अता करेंगे हमें? हम्द, सुभान अल्लाह। हमद हम के चन अशार खूबसूरत समातों की नस। ए रोशनी रहमत आमूस गार आ,
सुभान अल्लाह, ए रोशनी रहमत आमूसगार आ, तेरी जिया पे मेरा है दारो मदार आ, सुभान अल्लाह, तेरी जिया पे मेरा है दारो मदार आ, नादिम हूँ मैं गुनाहों पे दिल भी है पुरमलाल, सुभान अल्लाह। माइक भी ले लो तो ज़्यादा नादिम अच्छा हूँ हो जाएगा मैं आवाज़ का। गुनाहों पे दिल भी है पुरमलाल, लुत्फो करम से मेरा मुकद्दर संवार आ, सुभान अल्लाह, फिर पढ़ दें। नादिम हूँ मैं गुनाहों पे दिल भी है पुरमलाल, आह, लुत्फो करम से मेरा मुकद्दर संवार आ, तूने अता से सबको नवाजा है ए खुदा, तूने अता से सबको नवाजा है ए खुदा, अब्रे करम से चेहरा गुलशन निखार आ, सुभान अल्लाह, सुभान अब्रे अल्लाह, करम से चेहरा गुलशन निखार निखार आ, सुभान अल्लाह, आदाब आदाब कि बेढंग साअतों में गुजरती है जिंदगी, बेढंग साअतों में गुजरती है जिंदगी, तरतीब बंदगी दे मुझे किरदगार आ, सुभान अल्लाह, तरतीब बंदगी दे मुझे किरदगार आ, सुभान अल्लाह। मुश्किल पड़ी है ऐसी जो टलती नहीं जरा, मुश्किल पड़ी है ऐसी जो टलती नहीं जरा, ए दो जहां के मालिको जी इख्तियार आ, सुभान अल्लाह, ए दो जहां के मालिको जी इख्तियार आ, भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदाब आ जाए तू खिजा से छुटकारा पाऊं मैं, आ जाए तू खजा से छुटकारा पाऊं मैं, सुभान अल्लाह। फजले खिजा मिटाने को बादे बहार भाई आ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान फजले अल्लाह, खजा बहुत मिटाने आला, को बादे बहुत बहार आला, आ, वाह वाह आदाब। वाह, रब्बे जलील फिर मैं अंधेरों की जद में हूँ, क्या अच्छा मिसरा है। आदाब रब्बे जलील फिर फिर मैं से मैं- अंधेरों की जद में हूँ, ए नूर ज़ौफ़िशा है तेरा इंतजार आ, सुभान अल्लाह, ए नूर ज़ौफ़िशा है तेरा इंतजार आ, आ, करता हूँ तेरे नाम की तस्बीह में सुबह शाम, सुभान अल्लाह, करता हूँ तेरे नाम की तस्बीह में सुबह सुबह शाम, दरियाए लुत्फ़ और रहमते हक बेकनार आ, सुभान अल्लाह, दरियाए लुत्फ़ और रहमते हक बेकनार आ, सारे जहां के बादशाह दर के तेरे फकीर, सुभान अल्लाह, सारे जहां के बादशाह दर के तेरे फकीर, फकीर, कौनो मका का तू है फकत ताजदार आ, सुभान अल्लाह, कौनो सुभान अल्लाह। मका का तू है फकत ताजदार आ, रब्बे करीम तू ही बड़ा कार साज है, बेशक बेशक, रब्बे करीम तू ही बड़ा कार साज है, हैदर को जिंदगी में अता कर वक़ार आ, भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हैदर को जिंदगी में अता कर वक़ार भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शब्बीर भाई, एक चूंकि माहौल बन गया है और महफिल जो है वो जुल्फ़िकार भाई ने हमदे बारी ताला से सजा दी है, तो ये मेरा भाई भी कुछ अता कर दे कीजिए। और मैं मतलब नाजरीन, जब तक शब्बीर भाई अपनी नात जो है वो सर्च कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि शब्बीर नाजिश उन शोरा में है जिनको नए शोरा फॉलो करते हैं, और हम बहुत ही शौक़ से शब्बीर भाई का कलाम सुनते हैं, पढ़ते हैं और अपने मिसरे सीधे करने की कोशिश करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे, फिर आपको कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक से वापसी पे हमें ज्वाइन किया है निदा शेख, हमारी साथी एंकर ने। कल इनकी तबीयत नासाज थी, अब कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। और जितने भी मुझे देख रहे हैं उन सबको रमज़ान की 8वीं सहरी मुबारक हो। हम रमज़ान के 8वें रोज़े के अंदर दाखिल हो चुके हैं और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक के सदक़े में हमारी इबादत को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। तो अब हैदर भाई के कलाम के बाद हम शब्बीर भाई से गुजारिश करेंगे एक ऐसी तवाना आवाज़ शहर कराची की कि नौजवान जिनके अशार को फॉलो करते हैं
इनके लिखे हुए को पढ़कर अपने मिसरे सीधे करते हैं। शबीर भाई कुछ अता कीजिए। नात की कुछ जी जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। रूह मक्का दिल मदीना चाहिए, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रूह मक्का दिल मदीना चाहिए, जीना ऐसा हो तो जीना भाई चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान रूह अल्लाह सुभान मक्का अल्लाह। दिल मदीना चाहिए, सुभान अल्लाह। जीना ऐसा वाह हो वाह तो वाह जीना सुभान अल्लाह चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान आप अल्लाह तो सुभान अल्लाह। हर दिल में है जलवा नुमा, आप तो हर दिल में है जलवा नुमा, देखने को चश्मे बीना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 अल्लाह सुभान आप अल्लाह तो हर बहुत दिल आला। में है जलवा नुमा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखने को चश्मे बीना चाहिए। आपके हुस्ने अमल का दर्स है, आपके हुस्ने अमल का दर्स है। अपनी गुदड़ी आप सीना भाई चाहिए। सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह। आपके हुस्ने अमल का दर्स है, क्या कहने, अपनी गुदड़ी आप आप सीना सीना चाहिए। चाहिए। जन्नतुल फिरदौस की तकमील को जिसमें अतहर का पसीना चाहिए। वाह भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नतुल फिरदौस की तकमील को भाई सुभान अल्लाह। जिसमें अतहर का पसीना चाहिए। क्या कहने शब्बीर भाई, चाहिए उनकी गुलामी का शरफ, बहुत खूब। चाहिए उनकी गुलामी का शरफ, कब मुझे कोई खजीना भाई चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान। भाई इससे बढ़कर क्या है बिल्कुल भाई सुभान अल्लाह बहुत शुक्रिया। चाहिए उनकी गुलामी का शरफ, सुभान अल्लाह। कब मुझे कोई खजीना चाहिए। क्या कहने, नात कहने को तो कहते हैं मगर, नात कहने को तो कहते हैं मगर, नात कहने को करीना भाई चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नात कहने को तो कहते हैं मगर, नात कहने को करीना चाहिए। रोज़ाए अक़दस पे नाजिश हाजिरी, रोज़ाए अक़दस पे नाजिश हाजिरी, दम ब दम जीना ब जीना भाई चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोज़ाए अक़दस पे नाजिश हाजिरी, दम ब दम जीना ब जीना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रूह मक्का दिल मदीना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जीना ऐसा हो तो जीना भाई चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई वो फन शायरी इकबाल अजीम साहब का शेर है कि फन शायरी इकबाल अपनी जगह, नात कहने को खूने जिगर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये हवाले ऐसे नहीं हैं शबीर भाई कि बस आप बैठे और आपने लिखना शुरू कर दिया। जुल्फ़िकार भाई ये अता के हवाले हैं, ये अता के हवाले हैं, और ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और बड़े भाई आपको भी अल्लाह ताला ने एक काम पे मामूर कर दिया, खल्क़ खुदा की खिदमत पे। और बताइए और क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपके हालिया दिनों में आपने लॉन्च किए हैं, चल रहे हैं? अभी रिसेंटली हमने तंदूर लगाया है कोरंगी मैरान टाउन की तरफ, अच्छा, जिसपे हम सिर्फ 5 रुपए की एक रोटी दे रहे हैं। एक रोटी 5 रुपए की दे रहे हैं? जी वाह। फिर बता दें जरा दोबारा। एक रोटी हम 5 5 रुपए की रुपए दे रहे हैं, जो हमने खल्क़ खुदा वेलफेयर की तरफ से हमने एक तंदूर लॉन्च किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी माशाल्लाह बहुत इतना चल रहा है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो भाई देखें, आप जिस जगह का नाम ले रहे हैं वो ऐसी मिक्स आबादी है जहाँ बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, और ये बहुत अच्छा काम है। ऐसी है। अच्छा, तो हाउ टू मैनेज दिस थिंग्स, कैसे क्या? मैनेज कर रहे हैं आप? बस ये ऐसा है कि हम फंडिंग नहीं ले रहे किसी से। अच्छा। हाँ, हम जो फाउंडर मेंबर हैं, जो हम कौन कौन फाउंडर मेंबर हैं जरा दोहरा दें, बता दें। उसमें हमारी चेयरपर्सन है सुमेरा जावेद हैं, प्रेसिडेंट माशाल्लाह। नईम अमान साहब हैं, उसके बाद नसीम भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ, जाम उमैर है, तो बहुत सारे लोग हैं हम जो हमारे साथ मिलकर काम नहीं कर रहे लेकिन हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि सिर्फ हमारी इस फाउंडेशन का हिस्सा है। सही। बस वो हम मिल के अफोर्ड करते हैं। मैं हो गया, मतलब जितने भी हम दोस्त हैं हम मिल के अफोर्ड करते हैं, सब मिल के जो है ना इस सिलसिले को हम चला रहे हैं। तो उसके लिए कोई आपने क्राइटेरिया बनाया है, कोई जैसे कोई क्यू बनती है, लाइन बनती है, और एक शख्स कितनी रोटियां जो है वो ले जा सकता है, कुछ इस तरह का है? या ऐसा तो नहीं है वो दूसरे तंदूर वाला आके लाइन में अपने 4 आदमी खड़ा करके ले जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बंदे को 5 रोटी अलाउ है, हाँ तो उससे ज़्यादा फिर अलाउ नहीं है। लेकिन लोग ऐसा है कि एक घर के 5-5, 6 लोग आते हैं, जाहिर सी बात है फैमिली बड़ी होती है, तो फिर वो उससे तो जिसको हम पर्सनल तौर पे जानते हैं कि ये हकदार है, तो उसको हम फ्री में भी दे देते हैं, और अच्छा। ज़्यादा देनी पड़े तो ज़्यादा भी तो दे देते इस हैं। बीच के अंदर आपको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात तो बस
फंड की हो सकती है ना, और लेकिन बस अल्लाह चला रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि पुलिस आके कह के जी हमें भी रोटी नहीं ऐसा नहीं 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 है। ऐसा- अच्छा ऐसा तो नहीं हो सकता ना निदा। सोशल वर्किंग जो करते हैं ना, तो क्योंकि मैं तो अक्सर देखती हूँ तो उनको फंड के अलावा भी काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आवाम जो होती है उनकी तरफ से भी फिर ये देखना पड़ता है कि कौन मुस्तहिक है कौन नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये होती है कि वो जो एक धक्कम धुक्की का माहौल होता है और उसके अंदर सबको आप मैनेज कर रहे और होते हो। ये अहम बात कर रही है कि वो जो मैनेज करना है उस क्यू को, उस लाइन को, वो तो ये हो बड़ा रहा है। डिफिकल्ट हो जी जाता उसके है। लिए हमने दो प्रॉपर जो रज़ाकार volunteer रखे हुए हैं जो कि अच्छा। सामने अड़ोस पड़ोस के लोग हैं जो अच्छा, तो वो हमारे साथ- सैलरी पे है या वो भी नहीं, आपके नहीं। साथ मतलब वो कर रहे हैं हेल्प नहीं सैलरी नहीं ले रहे, वो हमारे साथ ऐसे ही रज़ाकाराना तौर पे। रज़ाकाराना तौर पे जब जॉब से वो आते हैं तो हमारे साथ टच हो जाते हैं। अच्छा, चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कराची का हर नौजवान इसी तरीके से, बल्कि इसी तरीके से क्या, ज़्यादातर मैं कराची में यही चीज़ देखती हूँ कि नौजवान आगे से आगे बढ़ के लोगों की मदद अगला प्रोजेक्ट पूछें, अगले प्रोजेक्ट्स पे क्या क्या आपके जहन में है, क्या करना और चाहेंगे? अगले प्रोजेक्ट देखें, तंदूर लगाने के बाद हमें ये तजर्बा हुआ कि ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोजेक्ट है जो हमें इस पर काम करना चाहिए। तो इंशाल्लाह अभी हम इसके रमज़ान के बाद हम दूसरा तंदूर लगा रहे हैं ये सरजानी के अंदर। माशाल्लाह। तो दुकान हमने ले ली है इंशाल्लाह। जितने भी गोट आबाद हैं जो कि कच्ची आबादी हैं जहाँ के गरीब गुरबा लोग रहते हैं, वहाँ हम इंशाल्लाह हमारी जो सोच है अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह तो हम पूरी नहीं, ये करेंगे। बहुत अच्छा काम है। हर कॉलोनी में हर गोट आबाद में हम ये एक एक तंदूर लॉन्च चावला साहब, आप समझते हैं कि ये जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया ये यकीनन ये गरीब आदमी को फायदा देने का है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसके अंदर ये चीज़ है कि इंसान कोई भी काम स्टार्ट करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो कि उसकी ज़िंदगी के अंदर एक रोल मॉडल होता है। तो आपके अंदर ये खिदमत खल्क का जो जज्बा है वो कैसे पैदा हुआ? बस अम्मी को देखता था, मेरी अम्मी के अंदर ये चीज़ें थी। अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह, ऐसी बात है वो माशाल्लाह। किसी फाउंडेशन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन बचपन से अम्मी माँ को देखते हुए आ रहे हैं कि हाँ। लोगों की अभी हेल्प वालिदा करनी है। हयात हैं? जी वालिदा फौत हो गई हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की ना वालदा वाली, तो ये जो है ना ये सारा तरबियत का देखें दारो मदार होता है कि इंसान को उसके घर से तरबियत मिलती है। आप बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अगर देखें तो उन्होंने उनके घर से उन्होंने मतलब तरबियत देना शुरू की कि वो दूसरों की मदद करती थी। खातून जन्नत का जो बिल्कुल। किरदार है मतलब वो उसका कैनवस इतना बड़ा है कि उस मतलब हम सब मिलकर उनकी खिदमत का अगर जिक्र बयान करें करें तो शायद तो भी हमारे अहाता लिए नहीं हो रमज़ान सकता। कम पड़ जाए, दिन कम पड़ जाए, मगर बहुत सी ऐसी चीजें, मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि ये सारा तरबियत के ऊपर दारोमदार होता है। और आजकल की माओं को मैं अक्सर ये देखती हूँ कि कहीं ना कहीं चीजें वो नहीं मतलब बच्चों को वो ट्रांसफर कर पाते हैं। बिल्कुल। शायद माहौल ऐसा हो गया, माशरा ऐसा हो गया, इसकी वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। चावला साहब, हाँ, मंसूर भाई आपने सवाल किया था इनकी खिदमत के हवाले से। मैंने कहा देखिए, ये वाला काम जो है ना ये डायरेक्ट गरीबों को बेशुमार मुश्किलात का सामना बिल्कुल ऐसे करना, ही। लेकिन ये एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत होती है जिसके लिए ये फैसिलिटेटर बने हुए हैं और उसको बहुत ही अर्जा नरखों पे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस बात पे इनके लिए तहसीन बनती है बिल्कुल तहसीन कि बनती है। इतने इनके मुश्किलात लिए के दरपेश माहौल में माशरे में ये कुछ रिलीफ दे रहे हैं। सुमेरा जावेद के लिए, बेशक। नईम आवान के लिए, नईम आवान भाई अगर मेरी बात सुने तो हमारी ख्वाहिश होगी वो और सुमेरा भी आए हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और अपने मजीद काम बताएं। जुल्फ़िकार भाई जी फरमाइए सर। आपकी तरफ आएंगे। नात के अता नात कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु चना अलैहि शामिश वसल्लम। करूंगा। जरूरत नहीं है। ले लीजिए ताकि वो एक डबल इम्पैक्ट आ जाता है। जो कल था यस्रिब है अब मदीना, सुभान अल्लाह अजब ये खुशबू तुराब में है। भाई, सुभान अल्लाह। जो कल था यस्रिब है अब मदीना, अजब ये खुशबू तुराब में है। इसी से गुलशन महक रहे हैं, इसी की रंगत गुलाब में। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी से गुलशन महक रहे हैं, इसी की रंगत गुलाब में। क्या कहने। है वारिसे अंबिया हमारे, खुदा हमारा किताब हमारी। सुभान अल्लाह। है वारिसे अंबिया हमारे, खुदा हमारा किताब हमारी। न जाने फिर भी तो हर मुसलमान क्यों इस कदर इस्तिराब में है। हाय हाय हाय। न जाने फिर भी तो हर मुसलमान
क्यों इस कदर इस्तिराब अहम में सवाल है। उठाया है ये शबीर भाई। आदाब। नबी का दुश्मन खुदा का दुश्मन बेशक हक बचा है। है और ना कभी बचेगा। बेशक नबी का दुश्मन खुदा खुदा का का दुश्मन। दुश्मन बचा है और ना कभी बचेगा। नबी की गुस्ताखी की है जिसने खुदा के हर दम इताब में है। सच है, सच है, नबी की सच्चा गुस्ताखी शेर। की है जिसने खुदा के हर दम इताब में है। वो बद्र हो या ओहद का मैदान हो जंग एजाब या के खैबर। सुभान अल्लाह। वो बद्र हो या ओहद का मैदान हो जंग एजाब या के खैबर। ये राज फतह मुबीन देखो नबी के हर एक खिताब में। सुभान अल्लाह। ये राज फतह मुबीन देखो नबी के हर एक खिताब में है। क्या कहने। आदाब। खुदा और महबूब हक की रहमत जमाने में मुस्तकिल है जारी। खुदा और महबूब हक की रहमत जमाने में मुस्तकिल है जारी। नबी का उसवा नबी का किरदार जिंदगी के निसाब में। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी का उसवा नबी का किरदार जिंदगी के निसाब में है। सुभान अल्लाह। मिलेगी आका की जब शफाअत मिलेगी आका की जब शफाअत तो दिल में महशर का खौफ क्यों हो। सुभान अल्लाह। मिलेगी आका की जब शफाअत तो दिल में महशर का खौफ क्यों हो। यही है वादा मेरे नबी का यही तो हक की किताब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही है वादा मेरे नबी भाई हौसला का, बढ़ा दिया, ईमान यही ताज़ा तो कर दिया हक आपने की हमारा। किताब में है। सुभान अल्लाह, सुभान आदाब, अल्लाह, आदाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि नबी के दर पर जबी झुकी है महक रही है फजाएं सारी। सुभान अल्लाह। नबी के दर पर जबी झुकी है महक रही है फजाएं सारी। मिलेगी ताबीर इसकी हैदर वो लम्हा जो मेरे ख्वाब में भाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलेगी ताबीर इसकी हैदर वो लम्हा जो मेरे ख्वाब में भाई है। सुभान अल्लाह, जो सुभान कल था यस्रिब है अब मदीना। सुभान अल्लाह। अजब ये खुशबू तुराब में भाई है। सुभान अल्लाह, सुभान इसी से अल्लाह। गुलशन महक रहे हैं इसी की रंग गुलाब में। भाई सुभान अल्लाह। सुभान ये जो आप एकदम माहौल ही तब्दील कर देते हैं ना, महफिल सजा देते हैं, उसके बाद जो है वो जरूरी हो जाता है कि माइक सीधा जो है वो शब्बीर भाई के हाथ में दे दें आप। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए भाई, और ऐसे ही लिखते रहिए। अच्छा, ये एक बॉन्डिंग हो जाती है कि जैसे इन्होंने यहाँ से महफिल शुरू की तो अब वो इनकी कैपेसिटी एक दूसरे की मतलब भाई वो हो गई है कि इसके बाद तो मैच इसके बाद करने बीच को। में जर्क नहीं आना चाहिए ना, तो बिस्मिल्लाह। आपके अशार हैं। अदा करें। आप जब बोरिया बिछाते हैं सुभान अल्लाह। आप जब बोरिया बिछाते हैं आसमां देखने को आते हैं। भाई सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आप जब बोरिया बिछाते हैं आसमां देखने को आते हैं। आसमां देखने को आते हैं फिर वो कुछ और देखता ही नहीं। फिर वो कुछ और देखता ही नहीं। फिर वो कुछ और देखता ही नहीं वो जिसे देखना सिखाते हैं। बस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान फिर अल्लाह। वो क्या कुछ कहने, और देखता ही नहीं। क्या कहने। फिर वो कुछ और देखता ही नहीं वो जिसे देखना सिखाते हैं। दीदाओ दिल हूँ फर्शे राह किए दीदाओ दिल हूँ फर्शे राह किए सुन रहा हूँ कि आप आते हैं। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीदाओ दिल हूँ फर्शे राह किए सुन रहा हूँ कि आप आते हैं। उनकी किस्मत पे रश्क आता है। उनकी किस्मत पे रश्क आता है। उनकी किस्मत पे रश्क आता है वो जिन्हें आप खुद बुलाते हैं। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी किस्मत पे रश्क आता है सुभान अल्लाह। वो जिन्हें आप खुद बुलाते हैं। दोस्तों दोस्त दुश्मनों के भी दोस्तों दोस्त दुश्मनों के भी आप तो दिल से दिल मिलाते भाई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। दोस्तों दोस्त दुश्मनों के भी आप तो दिल से दिल मिलाते भाई हैं। क्या कहने। यूं तो शेर देखिएगा। यूं तो जाते हैं शहरे इल्म में लोग। यूं तो जाते हैं शहरे इल्म में लोग। यूं तो जाते हैं शहरे इल्म में लोग कितने होंगे जो दर से जाते भाई सुभान अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह। क्या मौला की शान में आपने कह दिया।
भाई शब्बीर भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई, सलामत रहिए। यूं तो जाते हैं शहरे इल्म में लोग, यूं तो जाते हैं शहरे इल्म में लोग, कितने होंगे जो दर से भाई जाते सुभान हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, मतलब इसका लुत्फ लेने दीजिए। बहुत शुक्रिया। बात गुफ्तगू आपने मतलब किस कदर जो है वो पूरा दरिया कूजे में समेट दिया है कि जब आप आका फरमा रहे हैं कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है, और जो अली के साथ जुड़ेगा, जो उस दर से उस शहर की तरफ जाएगा इल्म के, वही पाएगा फला। बड़े भाई ये सब बस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फिर पढ़ दीजिए एक दफा। मैं पेश करता हूँ। यूं तो जाते हैं शहरे इल्म में लोग, सुभान अल्लाह, यूं तो जाते हैं शहरे इल्म में लोग, कितने होंगे जो दर से जाते क्या हैं। कहने क्या कहने क्या कहने। आप हैं नाजिशे ज़मानो मकान, सुभान अल्लाह, आप हैं नाजिशे ज़मानो मकान, ये ज़मानो मकान बताते भाई हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हैं नाजिशे आप ज़मानो हैं मकान, सुभान अल्लाह, ये ज़मानो मकान बताते भाई सुभान हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, आप जब बोरिया बिछाते हैं आसमां देखने को भाई आते सुभान हैं, अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर भाई वो शब्बीर कुछ भाई, और वाह, देखता ही नहीं, वाह, वाह, वो वाह, जिसे देखना सिखाते हैं। वो अब फिर दर वाला फिर पढ़ दीजिए भाई, मतलब उसको यूं तो तो- जितनी दफा आपसे सुने कम है भाई। क्या कह दिया आपने, वाह, यूं वाह, तो वाह। जाते हैं शहरे इल्म में लोग, सुभान अल्लाह, यूं तो जाते हैं शहरे इल्म में लोग, कितने होंगे जो दर से जाते भाई हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान बहुत अल्लाह शुक्रिया, सुभान जज़ाक। अल्लाह। शबीर भाई, भाई सलामत रहिए। क्या उम्दा आपने नात पेश की, और ये जो आपने दरवाजे की और शहर की के हवाले को बांधा है, एक मुझे अपनी गज़ल के दो शेर याद आ रहे हैं, अगर मुकम्मल जहन में आ जाएं कि बहुत पुरानी लिखी हुई है, कुछ मिसरे मौजू हो रहे थे कि जिसका मतलब मेरे जहन में नहीं आ रहा है। दूसरा मिसरा, दूसरा शेर मैं आपको अता कर दूं कि यही तो रास्ता बस वो जहन से महव हो गया। शेर जहन से महव हो गया, लेकिन उसका हवाला यही है कि नजरिया गर तेरा गारे हिरा है, नजरिया गर तेरा गारे हिरा है, तो फिर हर दो कदम पर करबला है। क्या बात है, क्या बात है, जुल्फ़िकार भाई, क्या बात। जुड़ेगी निस्बत वहीं से ही कि नजरिया गर तेरा गारे हिरा है, तो फिर हर दो कदम पर करबला है। जुनूनियत के हैं रस्ते पे इंतहा की तरफ, जुनूनियत के हैं रस्ते पे इंतहा की तरफ, कोई नहीं जो हमें ले चले खुदा की तरफ, कोई नहीं जो हमें ले चले खुदा की तरफ, और हिरा के गार से होकर चलें तो बेहतर है। वो जो आपसे इंस्पायरेशन मिली ना कि हिरा के गार से होकर चलें तो बेहतर है, यही तो रास्ता सीधा है करबला की तरफ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जुनूनियत के हैं रस्ते पे इंतहा की तरफ, कोई नहीं जो हमें ले चले खुदा की तरफ, और हिरा के गार से होकर चलें तो बेहतर है, यही तो रास्ता सीधा है करबला की तरफ। क्या बात है। नाज़रीन करम, यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। जी नाजरीन, हम लोग वफ़के से वापस आ चुके हैं, और हमारे साथी मेज़बान उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, अमजद कुरैशी। और जैसे कि रमज़ान का महीना है, और हमने आपको बोला था कि हम लोग छोटे छोटे इस तरीके के सेगमेंट आप लोगों को मुतारिफ़ करवाएंगे, तो बहुत ही खूबसूरत हमारा सेगमेंट है एक छोटी सी नेकी,